So good morning students. Today we are going to do the first chapter of class 5. The name of the chapter is Christopher. Chapter number is 1 and the name of the chapter is Christopher. Okay, the name of the chapter is Christopher and it's the first chapter of your English textbook. Okay, what exactly we are going to learn in this chapter? We are going to learn how the name Christopher came into being. How the name Christopher came into being. Christopher का Christopher नाम कैसे पड़ा? Actually, this story is about a man who's Actually, this story is about a man whose name was Ophiro. Ophiro is the central character of this story. Ophiro is the central character of the story. Now, what exactly Ophiro does? Ophiro करता क्या है ऐसा कि उसका नाम क्रिस्टोफर पड़ जाता है? ठीक है ना? ये मैं अभी आपको ओपन नहीं करूंगा, अभी खुल के नहीं बताऊंगा, अदरवाइज स्टोरी की इंटरेस्ट आपकी खत्म हो जाएगी. We shall read the entire story one line by line. I will give you the explanation और तब आप खुद एहसास करेंगे at the end of the story कि ये ओफिरो क्रिस्टोफर कैसे बनता है. Okay? Okay. So let's start the chapter. It goes like this. There have been many good and godly persons in the world. इस दुनिया में बहुत सारे godly persons आए हैं. देवी देवता के रूप में अच्छे लोग से भी दुनिया में आए हैं. So here you will read the story of one such noble person. आज भी आप एक ऐसे ही noble, ऐसे ही gentle person के बारे में, एक ऐसे ही भद्र इंसान के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो क्या था, उसका नेचर कैसा था, वो किस किस्म का इंसान था और उसने ऐसा क्या किया, what exactly he did in his life, because of which his name Christopher came into existence. He was called Ophiro. उसका नाम था Ophiro. He was a man of giant size and strength. वह एक ऐसा इंसान था जिसकी कद काठी बहुत लंबी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था वो इंटरनली, और बाहर से भी देखने से वो एक मस्कुलर वेल बिल्ट इंसान था वो. He was kind and good to all. सबों के लिए वो दयालु और सबों के लिए वो एक अच्छा इंसान था. सब उससे प्यार भी करते थे. He was always helping others in one way or the other. किसी न किसी तरीके से वह किसी न किसी की कभी न कभी मदद कर ही रहा होता है. So basically, Ophiro was a strong, well-built, muscular person. He was a man of helping nature. वो लोगों की मदद किया करता था और everybody used to love her. हर कोई उससे प्यार करता था. And every time he was found helping someone or the other. वह हर वक्त किसी न किसी को वो मदद ही कर रहा होता था, ऐसा लोग उसे देखते थे. Now what happens further? Let's see. One day, Ophiro was sitting on the bank of a river. Ophiro एक नदी के किनारे बैठा हुआ था. It was a wide and deep river. बहुत ही चौड़ी और गहरी नदी थी. Ophiro saw an old man standing on the bank. Ophiro ने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे खड़ा है. The old man was looking over the river. The old man river के उस पार देख रहा था. He looked very sad. वो बहुत ही दुखी था. उसके चेहरे से दुख झलक रही थी. Ophiro went up to him and said, "Can I help you, sir?" Ophiro उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर?
आई होप आपको यहां तक ये सारी बातें क्लियर होंगी। द मैन लुक्ड एट ओफ्रो एंड सेड, उस इंसान ने ओफ्रो पे देखा और कहा, आई वांट टू गो अक्रॉस द रिवर बट द वाटर इज वेरी डीप। मैं इस रिवर को क्रॉस करके उस पार जाना चाहता हूं, लेकिन पानी बहुत गहरी है। द करंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं, करंट मीन्स द स्पीड एट विच द वाटर फ्लोज इन रिवर या सी। जिस वेग से पानी, जिस रफ्तार से पानी का भाव होता है, उसे करंट कहते हैं। द करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम। पानी की गति भी बहुत तेज है और मुझे तैरना भी नहीं आता है। सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो। ओह, इज दैट ऑल? इतनी छोटी सी बात? said Ophir very kindly, I'll take you across the river. मैं आपको रिवर के उस पार ले जाऊंगा। Nothing is there to be worried about. चिंता करने की कोई बात नहीं। I'm tall and strong and the water is not too deep for me. मैं बहुत ही tall हूँ, बहुत ही strong हूँ और ये water बहुत मेरे हिसाब से according to me this water is not that deep. आपके लिए deep होगी, but मेरे size को देखिए, मेरे length को देखिए, height देखिए, मेरे लिए ये कोई डीप वाटर नहीं है। नथिंग इज टू बी वरीड अबाउट। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको ले चलूंगा। आई कैन वॉक थ्रू इट इजिली। मैं इससे होकर के इजिली क्रॉस कर सकता हूं इस पानी को, इजिली क्रॉस इस पे चल सकता हूं इस पानी पे। कम एंड सिट ऑन माई शोल्डर्स। आओ और मेरे शोल्डर पे बैठ जाओ। Ophiro bent down on his knees and the old man climbed onto Ophiro's big and broad shoulders. Then Ophiro stepped into the water. वो आदमी Ophiro के कंधे पे जाके बैठ जाता है और फिर Ophiro पानी की तरफ निकल पड़ता है, पानी में स्टेप इन होता है। Don't be afraid, said Ophiro very kindly. Hold on to my head and soon we will be on the other side. चिंता मत कीजिए, हम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बस हेड को पकड़ के आप बैठे रहे, मैं आपको उस साइड क्रॉस कराऊंगा, अदर साइड में आपको ऑपोजिट साइड मैं क्रॉस कराऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझ पे भरोसा रखें। हैव फेथ ऑन मी। विद फर्म स्टेप्स Ophiro walked across the river. काफी मजबूत कदमों से, फर्म स्टेप से Ophiro रिवर के और अंदर घुसता है। Soon they reached the other bank. बहुत जल्दी ये नदी के दूसरे किनारे पे चले जाते हैं। Ophiro set the old man safely on the ground. Ophiro ने बहुत ही सेफली उस इंसान को अपने कंधे से ग्राउंड पे उतार दिया। May God bless you, said the old man and went his way. उस ओल्ड मैन ने उसे दुआएं दी, उसे ब्लेसिंग्स दी और फिर वो ओल्ड मैन चला जाता है। Now Ophiro turned and waded back to the other bank. Ophiro वापस अपने किनारे चला आता है जिस किनारे वो उस आदमी से मिला था। He looked at the river and said to himself, I'll build a hut here on the river bank and live in it. वो Ophiro डिसाइड करता है कि मैं इस नदी के किनारे रहता हूँ। लोगों को नदी क्रॉस करना होता है, दे फील प्रॉब्लम, उनको परेशानी महसूस होती है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं लोगों की मदद भी कर पाऊँ। तो उसने क्या किया, उस नदी के बैंक पे, उस नदी के किनारे अपना एक छोटा सा घर बना लिया, उसमें वो रहने लगा और जिस भी इंसान को रिवर के ऑपोजिट बैंक जाना होता था उसकी वो मदद करता था। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली थी। So he looked at the river and said to himself, I'll build a hut here on the river bank and live in it. मैं इसी रिवर बैंक पे एक झोपड़ी बनाऊंगा और यहीं पे मैं रहूंगा। Thus I can help people who want to cross the river but don't know how to swim. इस तरीके से मैं उन लोगों की मदद कर पाऊंगा जो रिवर क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें स्विम करना नहीं आता है। I'm tall and strong and can carry them on my shoulders. मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, टॉल हूँ और मैं लोगों को अपने शोल्डर पे कैरी करके रिवर क्रॉस करा सकता हूँ। Thus I help them cross the river. इस तरीके से मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा रिवर क्रॉस करने में। The hut was soon ready. जल्दी ही उसने अपनी झोपड़ी बना ली and Ophiro started living in it. Every day he carried men, women and children across the river. रोज वह कुछ बच्चों को, बूढ़ों को, मेन को, वीमेन को
सबको क्रॉस करना आता था उस रिवर से। ये उसकी अब एक जॉब सी बन गई थी, उसका एक काम सा हो गया था। वन नाइट अनाउंस, अब यहाँ से थोड़ी स्टोरी टर्न होती है। समथिंग, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। आज ओफ्रो के भी साथ कुछ डिफरेंट होने जा रहा है आज के रात। वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, भयंकर तूफान था। रफ विंड्स बिगैन टू ब्लो एंड द स्काई ग्रू डार्क, जो विंड्स थे वो बहुत ही रफ हो गए थे और स्काई पूरी तरीके से डार्क हो गई थी, खूब घनघोर बादल से छा गए थे। The clouds thundered and the lightning flashed, बिजली की गरजने की आवाज हो रही थी और बिजली के चमकती हुई बिजली भी दिखाई दे रही थी। लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी स्काई में। सडनली ऑफ्रो हर्ड अ वॉइस, अचानक से ऑफ्रो को एक आवाज सुनाई देती है। ऑफ्रो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, ऑफ्रो प्लीज मुझे इस रिवर के उस पार ले चलो। ऑफ्रो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, ऑफ्रो अपने हट से, अपने झोपड़ी के बाहर देखता है। He saw a little boy, उसने एक छोटा सा बच्चा देखा। Shivering in the cold, वो थरथरा रहा था, कांप रहा था ठंड से। ऑफ्रो came out of his hut and bent down to the little boy. ऑफ्रो अपने हट से बाहर, अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और उस लिटिल बॉय के सामने जाके झुक जाता है। Oh little one, he said very softly, come into the hut. The weather is so rough. I shall take you across the river in the morning. Oh little boy, don't stand here outside the hut. Come inside the hut. बहुत बारिश होने वाली है, आंधी तूफान हो रही है, मैं तुमको कल ले चलूंगा। कल सुबह, कल अर्ली इन द मॉर्निंग में तुमको ये रिवर क्रॉस करा दूंगा, बट अभी तो देखो पूरा तूफान आया हुआ है, मेरे हट के अंदर आ जाओ। A sad look came on the child's face. उस बच्चे के चेहरे पे एक अजीब सी सैडनेस आ गई थी, उदासी आ गई थी ये बात सुन के। ऑफ्रो saw tears in his eyes. ऑफ्रो ने देखा कि वो बच्चा रो रहा है। ऑफ्रो said the child, please take me across the river. I can't wait. I have to go right now. वो लड़का, वो छोटा सा बच्चा ऑफ्रो से stubbornly जिद करता रहा है। वो जिद्दी हो गया और कहता प्लीज मुझे आज की ही रात ले चलो, मुझे आज ही रात जाना है, मुझे अभी जाना है, उस रिवर को अभी क्रॉस करना है। Ofro gathered the child lovingly in his arms. All right, he said, we will go right now. Don't be afraid of the storm. Ultimately, बच्चे की जिद के सामने ऑफ्रो डिफीटेड हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। I will take you the opposite side of the opposite bank of the river. मैं तुम्हें ले चलूंगा, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। Ofro put the child on his shoulders and waded through the angry river. यहाँ angry river कहने का मतलब stormy river. रिवर में बहुत storm आ गया था, आंधी तूफान से। ऑफ्रो ने उस बच्चे को अपने पीठ पे रखा और वो निकल पड़ा नदी को क्रॉस करने के लिए। The icy wave lashed on his body and the winds roared. बर्फीले जो वेव थे, जो बहुत ठंडे पानी थे, बर्फीले ठंडे पानी थे, वो ऑफ्रो के बॉडी से टकराते थे, फिर भी ऑफ्रो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। But he held the child tightly and walked on. फिर भी वो ऑफ्रो उस बच्चे को स्ट्रांगली पकड़ा रखा और फाइनली उसे वेट थ्रू करा दिया, उसे उस पार ले गया। At last they reached the other side. Ofro set the child down gently. ऑफ्रो ने बहुत ही प्यार से नाजुक तरीके से उस बच्चे को जमीन पे रख दिया। Little one, he said, shall I come with you? ऐ छोटे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? It is too dark for you to go alone. तुम जहाँ भी जाना चाहते हो तुम जाओ, लेकिन अभी बहुत डार्क हो गई है, रात हो गई है, तुम्हें डर लगेगी। Can I come to help you? क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकता हूँ? But the child said nothing. बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। He only smiled at Ofro and walked away. वो केवल ऑफ्रो को देख करके मुस्कुराया, थोड़ी सी उसने हंसी दिखाई ऑफ्रो को देख करके, he walked away, वो चला गया। Ofro saw a soft circle of light round the child's head. ऑफ्रो ने देखा, बहुत अनयूजुअल चीज देखा कि उस बच्चे के हेड के पीछे एक राउंड सर्किल सी बन गई हुई है।
नाउ वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब इससे सब कुछ समझ में आ गया। क्या? कि जिस बच्चे को मैंने अभी वेड थ्रू कराया है, जिस बच्चे को मैंने अभी रिवर क्रॉस कराया है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये भगवान का एक बहुत ही सुनहरा गिफ्ट है ये। He fell on his knees, वो अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है, and said, और उसने कहा, Oh God, it was child Christ whom I carried on my shoulders. हे भगवान, मैंने अपने कंधे पे ये रिवर क्रॉस कराया है, जीसस क्राइस्ट को कराया है, ईसा मसीह को कराया है मैंने। When people came to know of it, जब लोगों को ये बात पता चला कि ऑफरों ने उस रात क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को ये क्रॉस कराया है रिवर, they gave ऑफरो द नेम क्रिस्टोफरो, तो लोगों ने ऑफरो को नाम दे दिया क्रिस्टोफरो, नाम दे दिया लोगों ने। When the people got to know that Ofro helped Christ wade through the river, they gave Ofro the name Christopher. But we get the English name Christopher. लेकिन हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं ना, क्रिस्टोफर पढ़ते हैं, हम इस नाम से जानते हैं क्रिस्टोफर। It means bearer of Christ. क्रिस्टोफर का मतलब होता है, क्रिस्टोफर का मतलब होता है bearer of Christ. bearer मतलब होता है ढोने वाला, bear मतलब होता है ढोना, bearer मतलब ढोने वाला, वह इंसान जिसने कभी जीसस क्राइस्ट को अपने कंधे पे ढोया था, यानी कि कंधे पे क्रॉस कराया था रोड। इस प्रकार से इसका नाम क्रिस्टोफर पड़ता है। In time, Christopher came to be known as सेंट क्रिस्टोफर, और कुछ दिनों के बाद इसी क्रिस्टोफर का नाम सेंट क्रिस्टोफर पड़ जाता है, इसे संत क्रिस्टोफर के नाम से लोग जानने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस स्टोरी में किस तरीके से ऑफरो ने मदद की जीसस क्राइस्ट को उस रिवर को क्रॉस कराने के लिए, और किस तरीके से जब लोगों को पता चला कि ऑफरो ने जीसस क्राइस्ट को रात उस बच्चे को रात में तूफान में इतने स्ट्रगल करके, इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके, इतना रिस्क लेके, टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क, उसने क्राइस्ट को क्रॉस कराया है ये रिवर, तो लोगों ने उसका नाम दे दिया क्रिस्टोफरो। लेकिन हम लिटरेचर में, हम रिटन में और इंटरनेशनली इनका नाम क्रिस्टोफर जाना जाता है, और लोगों ने इन्हें सेंट क्रिस्टोफर भी कहना स्टार्ट कर दिया, और लोग सेंट क्रिस्टोफर भी कहते हैं। सो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे आप उसे पढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।